Assalamu alaikum dear friends, welcome to my YouTube channel. In our last lecture we discussed what is zoology. Zoology is study of an animal. Then we discussed that what zoologists do, how they study different types of animals, and what are the things they look into when they are studying different type of animals. So if we start today, the main topic of our lecture is what is an animal. एक एनिमल क्या होता है? What are the characteristics that distinguish an animal from other form of organism like plant, fungi, algae, and bacteria, virus? So what are those contrasting characters that are present in animals that specify them and they are placed in kingdom Animalia? So before wasting time, let's move directly into it. What is an animal? Normally, when someone asks you this question, we the first thing that came into our mind or that come into our mind are elephants, caterpillars, frogs, segmented worms, jellyfishes. So these are the different type of things that come into our mind. But normally, these are not the only things that are in the animal kingdom. There are other organisms as well that are quite different. They may not look like an animal, but they are actual animals. So, for example, if here we look at an example of sea sponge and Venus flytrap, both of them they look like an animal, but one of them is a plant, another one is an animal. So how would you pick which one is an animal? So there are some basic characteristics that must be present in an animal. What are those characteristics? The first one is that all animals are mostly multicellular organisms, means that they are made up of more than one cells. Even a simple organism may contain trillion of cells. So the first criteria that must be fulfilled by an animal that it must be having many cells. There are some exceptions to this rule. There are some organisms that may have only one cell, but still they are animals like protozoans. Many people consider them animal like protist. They have the characteristics of animals. So this generally 90%, 95% this rule applies that an animal must be multicellular organism. Here in this diagram, we have shown the microscopic image of cells that are present in mice or mouse. So their skin contain many cells. So they are multicellular organism. Next characteristic number two, is that an animal must be heterotroph. Heterotroph or this quality means that an organism is not capable of making their own food. So animal must not be capable of making their own food. They would not be able to manufacture their own food. They will rely on other organism for food. ये वो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपनी खुराक के लिए। तो ये ऑर्गेनिज्म की दूसरी क्वालिटीज़ है एनिमल्स की कि ये इनमें हेट्रोट्रॉपी होगी, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपनी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइंट फांडास को, दिस इज़ जाइंट फांडा। और ये क्या खाता है? यूजुअली ये ग्रास खाता है, घास खाता है। और नॉर्मली जो घास ही खाता है स्पेसिफिकली दैट इज़ बम्बू। सो पांडा इज़ डिपेंडेंट ऑन बम्बू। फिर इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि हेट्रोट्रॉप में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक टाइप का खुराक खाते हैं, दे आर नोन एज मोनोफेगस। कुछ फिर इस तरह भी होते हैं जो हर किस्म की खुराक खाते हैं, दे आर कॉल्ड फूलीफेगस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फांडा, इट इज़ अ मोनोफेगस ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि ये सिर्फ एक किस्म की खुराक खाता है। और अगर बम्बू किसी इलाके में ना हो तो फांडा एक्सटेंशन की तरफ चले जाता है, क्योंकि ये दूसरे किस्म का खुराक प्रेफर नहीं कर सकता। तो दे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर choosy in their food as well. They pick only one type of food.
So the second quality we discuss here that is specific for an animal is heterotropy, that an organism must be heterotrophic in nature. Next, third quality that must be present in animal and that distinguishes animal from plant is the presence of cell membrane. So animal cell do not have cell walls. Cell walls क्या है? Cell walls are cellular structure जो कि स्पेसिफिक होते हैं प्लांट्स, algae एंड फंजाई में। और फिर फंजाई, algae और प्लांट्स में जो सेल वॉल होते हैं उनकी कंपोजिशन पर डिपेंड होती है, वो अलग टॉपिक है, वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एनिमल सेल जो होता है इनमें सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है डेट इज सेल मेम्ब्रेन, whereas in case of plants, algae and fungi the outer membrane is a cell wall. सो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि एनिमल्स का जो सेल वॉल है ये यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया है। whereas in plant cell there is no cell wall, there is just cell membrane. So the one cell is connected to other, their boundaries are cell membranes in case of animals. So this is the third quality that must be present if we are assign a specific organism to the animal kingdom कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं होगा। थर्ड क्वालिटी ये है। फोर कैरेक्टरिस्टिक, the fourth characteristic is that an animal must be having certain type of differentiated tissues. मोस्टली वो टिश्यूज़ मसल्स के होते हैं या नर्वस टिश्यूज़ होंगे। सो एनिमल मस्ट हैव डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ लाइक मसल एंड नर्वस टिश्यूज़। और मसल और नर्वस टिश्यू इनकी नेसेसिटी है क्योंकि एनिमल्स की जो फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वालिटी है दैट इज़ लोकोमोशन। सो लोकोमोशन की जो क्वालिटी है, लोकोमोशन की क्वालिटी में इनको क्या चाहिए होगा, इनको मसल चाहिए होंगे क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में। सो एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी हैविंग मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यू टू हेल्प देम लोकोमोट। यहाँ पर ये सी कुकम्बर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि सी कुकम्बर किस तरह अपने टेंटिकल्स को यूज़ कर रहा है सी बेड पर, और जू प्लैंक्टन्स या छोटे छोटे जो जानदार होते हैं उनकी तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा है। ये किस वजह से, इसके पीछे का क्या राज है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ the sea cucumber muscular system and nervous system that is helping him in search of food. Next is the fifth quality that an animal must contain, or which is a characteristic of animal, is certain type of symmetry. What is symmetry? So in biology, symmetry is the balanced distribution of duplicate body parts or shapes. मीन्स के सिमेट्री एक ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक शेप देता है कि एक ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ बॉडी पार्ट किस एंगल से और किस तरीके से एक जिस्म के अंदर फिट है। सो दो किस्म की सिमेट्री आपको एनिमल किंगडम में दिखाई देंगी, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट होता है वो अगर हम उसको टू प्लेन्स में डिवाइड करें तो इनके मिरर इमेजेस आएंगे और दो से ज़्यादा में भी मिरर इमेजेस आ सकते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री आपको सिर्फ दो एक प्लेन में आपको टू इक्वल पार्ट्स में एक एनिमल डिस्ट्रीब्यूट होकर नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये बटरफ्लाई का एग्ज़ाम्पल हमने पेश किया है जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है। अगर हम इसको दरमियान से इस तरह काटें तो इसका राइट साइड लेफ़्ट साइड का कम्प्लीटली मिरर इमेज होगा। मतलब राइट साइड में जितने बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स होंगे उतने बॉडी पार्ट्स लेफ़्ट साइड में भी होंगे। तो राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ लुक लाइक अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो बायलैटरल सिमेट्री में हम सिर्फ एक प्लेन के ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री हम इसको दो या एक से ज़्यादा प्लेन में भी डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जो ऑर्गन्स है वो इक्वल नहीं है नीचे वाले पार्ट की तरह। सो in this case the butterfly is an example of bilateral symmetry. सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। पर एनिमल किंगडम में सिवाय दो तीन ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री नहीं है। बाकी जितने भी एडवांस ग्रुप एनिमल्स हैं उन सब में बायलैटरल सिमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस
कोडियक बियर को देखें तो इसको अगर हम इस तरह से इस प्लेन से डिवाइड करें तो इसका राइट और लेफ्ट साइड इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम इसको नीचे से डिवाइड करें दूसरे पेन से तो उसका अपर साइड और नीचे का साइड बिल्कुल डिफरेंट है। ऊपर वाली साइड में इसका हेड है, वेयर नीचे वाले जो साइड है इसमें इसकी फीट्स है। सो अगर हम बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ एक प्लेन के ज़रिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन के ज़रिए हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द concept behind bilateral symmetry, and it is a property of most advanced animals. Whereas on the other hand, if we discuss the radial symmetry में किस तरह होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम एक से ज़्यादा प्लेन्स के जरिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपको एक केक दिखाया गया है, इसको अगर हम इस तरह डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह करें तो फिर भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह करें फिर भी होगा। सो इसको हम मोर देन वन प्लेन्स के जरिए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली इसकी जो एग्जांपल है वो स्टारफिश है और जेलीफिश है। एनिमल किंगडम में फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दोनों रेडियल सिमेट्री के केसेस में आते हैं। रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्म में अडल्ट स्टेज में आपको मिलेंगी, उनकी जो लार्वल स्टेज होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। तो ये 2 किंगडम में से है जिसमें से आपको रेडियल सिमेट्री मिलेंगी। इसके अलावा एक थर्ड टाइप भी है एसिमेट्री वाली, वो आपको सिर्फ पाइलम पोरिप्रा या स्पॉन्जेस में आपको मिलेगी। सो रेडियल सिमेट्री का जो एसेंस है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा प्लेन्स के थ्रू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नो जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर ये सी स्पॉन्ज का एक पिक्चर दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये सेकंड एग्जांपल जो दिया है वो वीनस फ्लाई ट्रैप का है। तो इन दोनों में से एनिमल कौन सा है? सो दोनों खुराक को कंज्यूम करते हैं, मतलब ये अपना खुराक दोनों अपनी खुराक नहीं बनाते। स्पॉन्जी किस तरह से ये फिल्टर फीडर है, मीन्स ये वाटर को फिल्टर करके उसमें से छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये ये क्या करता है, ये बाहर से इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और फिर उनको खा जाता है। इट इज़ ए कार्निवोरस प्लांट एक्चुअली। सो अगर हम सी स्पॉन्ज को देखें और वीनस फ्लाई ट्रैप को देखें तो दोनों हमारे पास स्टेशनरी है, लेकिन सी स्पॉन्ज का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है अगर हम उसको देखें तो उसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ नज़र आएगा। वेयर एज वीनस फ्लाई ट्रैप को अगर हम देखें तो इसमें सेल वॉल है। सो दोनों ऑर्गेनिज्म में मस्कुलर और नर्वस टिश्यू नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कि ये वाला है इसमें सेल वॉल नहीं है, बल्कि इसका आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। सो जैसा कि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म वो एनिमल्स के ज़ुमरे में आएंगे या किंगडम में आएंगे जिनकी सेल वॉल नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है। सो बाय दिस वे हम कह सकते हैं कि जो सी स्पॉन्ज है ये एग्जांपल है एनिमल्स का। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ये एनिमल्स के साथ शेयर करता है, दैट जैसे कि इसका जो रिप्रोडक्शन है, लाइफ साइकिल है या बॉडी कंपोजिशन है। इनके अलावा इसमें ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादातर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का जो बुनियादी मकसद है वो ये है बेस पेट वाला, कि एक ऑर्गेनिज्म एक किंगडम में किस तरह बेस पेट होता है। तो ये इनका बुनियादी और बेसिक मकसद